والوں، یہ رات اہل حرم کے لیے قیامت کی رات ہے۔ حدیث و تاریخ کہتی ہے کہ وقت عصر امام حسین علیہ مقام جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے ہیں تو خیموں میں بحران برپا ہو گیا تھا۔ جب تک امام سید الشہداء کی ذات زندہ تھی، تمام بیویوں کو ڈھارس تھی اس بات کے سلسلے میں کہ ابھی آقا حسین زندہ ہیں۔ جناب عباس رخصت ہو گئے، مگر یہ ہے کہ امام حسین زندہ ہیں۔ جناب علی اکبر نہیں رہے، مگر بیویوں کے دل کو ڈھارس ہے کہ حسین زندہ ہیں۔ اور محمد گزر گئے، مگر بیویوں کو ڈھارس ہے کہ حسین زندہ ہیں۔ حدیث اس وقت کیا عالم ہوا ہوگا جب امام حسین نے آ کے کہا ہوگا، اے بہن الوداع، اے ام کلثوم خدا حافظ، ماں کی کنیز فضا، حسین کا سلام آخر قبول کر لو۔ عزیزوں کو کیا قیامت کی کھڑی رہی ہوگی جس وقت حسین نے یہ جملہ آ کر کے کہا ہوگا۔ یہی تو وجہ تھی ارباب ادا کہ جیسے ہی بہن نے یہ سنا کہ میرا بھیا رخصت آخر کے لیے آیا ہے، زینب آگے بڑھ کے اپنے ماجائے کو کلیجے سے لگا لیتی ہے، اے بھیا کس کے حال میں چھوڑے جا رہے ہو؟ اب زینب کیا کرے گی؟ نہ اکبر ہے، نہ قاسم ہے، نہ عباس علمدار ہیں، ایک تمہارا سہارا تھا اور تم بھی چھوڑ کے جا رہے ہو۔ عزیزوں اور جو لپٹ کے زینب روئی ہیں، ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا کہ روتے روتے زمین کربلا پہ ایک طرف بھائی بے ہوش ہو کے گرا تو دوسری طرف بہن بے ہوش ہو کے گری۔ عزیزوں سوچئے جس کربلا میں پینے کے لیے پانی نہ ہو، آپ جانتے ہیں نا بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، آخر بھائی بہن کو کیسے ہوش میں لایا گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں تصور یہ کہتا ہے کہ اہل حرم نے آنسو بہائے ہوں گے اور آنسوؤں کے قطرات جب زینب اور امام حسین کے چہرے پر پڑے ہوں گے تو بھائی بہن کو ہوش آیا ہوگا۔ لیجیے ارباب ادا، اس کے بعد امام عالی مقام ایک بیوی سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین رخصت ہو کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کبھی کوئی بیوی تھام لیتی ہے دامن کو، کبھی حسین پھر بڑھتے ہیں، کبھی دوسری بیوی دامن کو تھام لیتی ہے، کہ کسی طرح سے کوئی حسین کو رخصت کرنے پہ آمادہ نہیں۔ امام نے کہا سیدانیوں ایک حلقہ بنا لو، میں تمہارے درمیان سے گزر جاتا ہوں تاکہ سب ایک ساتھ مجھے رخصت کر دیں۔ عزیزوں تمام بیویوں نے الوداع کہا، حسین خیمے سے باہر نکلنے لگے، اور تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ انہی اہل حرم کے درمیان حسین کی ایک چھوٹی سی بچی 3-4 برس کی سکینہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے درمیان مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زینب میں کلثوم دوسری سیدانیاں رخصت کر رہی ہیں، تو اس بچی کی نفسیات نے یہ کہا تو نہ صحیح، جب میرا بابا رخصت ہو کے نکلے گا تو یقیناً ذوالجناح پہ سوار ہو کے جائے گا۔ اسی لیے سکینہ پہلے ہی سے ذوالجناح کے قریب پہنچ گئی، اور جب امام حسین رخصت ہو کے آئے ہیں ذوالجناح کے قریب تو کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ زینب نے بڑھ کے حسین کو سہارا دیا، اے میرے ماجائے آج عباس نہیں ہے نا، آج اکبر نہیں ہے نا، لو زینب سہارا دیتی ہے۔ زینب نے حسین کو سہارا دے کے سوار کیا، لیکن چاہتے ہیں کہ آگے اس پہ باوفا کو بڑھائے، وہ ذوالجناح قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ امام نے سر کو جھکایا، اے میرے نانا کی سواری، اے میرے اس پہ باوفا، یہ میری آخری سواری ہے، مجھے پتا ہے تو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لایا ہے اور تھک چکا ہے، مگر حسین اب اس کے بعد زحمت نہیں دے گا، بس مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے، مجھے نشیب تک پہنچا دے، اس کے بعد تیری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ مگر اس بے زبان نے سر سے اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کیا۔ اب جو امام حسین نے جھک کے دیکھا تو سینے پہ سونے والی سکینہ ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی بیٹھ کر رہی تھی۔ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ اب تک جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ یہ منظر دیکھ کے حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، اے میری بچی سکینہ، ارے تم نے تو بابا کو رخصت کر دیا تھا، پھر یہ آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا طبیعت نہیں مانتی ہے، بابا آپ جانتے ہیں نا کہ جب تک آپ کا سینہ نہیں ملتا تھا سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ بابا آپ جا رہے ہیں، ابھی شام غریبہ آئے گی، یہ بتائیے سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ حسین نے کہا بیٹی آج سے طریقہ بدل جائے گا، ششماہا مجاہد الاصغر میرے
तुम भी ज़ैनब के सीने पे सोना। मगर बच्ची ने अपनी कमसिनी के मुताबिक कहा बाबा लेकिन जाते जाते एक मर्तबा तो सुला लीजिए बाबा। लीजिए दीदो, करबला का वो शहीद, करबला का वो मुजाहिद एक मर्तबा हुसैन करबला की तपती हुई जमीन पर लेट गए कि सकीना को अपने सीने पे सुलाया। जब बच्ची को बाबा का सीना मिला बड़ा सुकून मिला। तब लम्हे के लिए सकीना को नींद आ गई, लेकिन अब नींद के आलम में ख्वाब में वादी फातिमा को देखा। एक मर्तबा चौंक के उठ गई, कहा बाबा खुदा हाफिज, बाबा अलविदा जाइए, ये सकीना नहीं रोकेगी। कहा सकीना अभी तो तुम जाने नहीं दे रही थी, अब अपने बाबा को रोक क्यों रही हो? तो जुमला सुनिए, तड़प के रोइएगा। कहती है सकीना, अरे बाबा मुझे आपके सीने पे नींद आ गई, मैंने ख्वाब में दादी फातिमा को देखा जो मुझसे कह रही है सकीना अरे जल्दी जरा मेरे हुसैन को रुखसत करो, मैं बहुत देर से मक्तल की जमीन को साफ करके अपने लाल हुसैन का इंतजार कर रही हूँ, जाइए बाबा खुदा हाफिज। अब सकीना आपसे कुछ न कहेगी। लीजिए हुसैन मैदान कतार में पहुंचे, जिहाद करना शुरू किया है। जालिमो कहाँ भागते हो, तुमने मेरे अब्बास जैसे भाई को मार डाला। जालिमो ठहरो, तुम कहाँ भागते हो, तुमने मेरे कलियत जवान अकबर के सीने पे नेजा लगाया। जालिमो तुमने मेरे कासिम को पामाल कर दिया, हद है मेरे 6 महीने के शीरखान को भी नहीं छोड़ा। हुसैन हमला करते जाते हैं, हमला करते करते एक मर्तबा हुसैन साहिल फरात पे पहुंचे जहां अब्बास का जनाजा पड़ा हुआ था। जाके कहते हैं अब्बास अरे उठो, अपने आका की जंग देखो। तुमको बड़ी हसरत थी जंग करने की ना, ये लो तुम्हारी जानिब से तुम्हारा आका जंग करता है। अब जो अब्बास की जानिब से हुसैन ने हमला किया, फौजों में अलमान अल हफीज की सदाएं बुलंद हो गई। उधर से आवाज़ें गैबी आई, बस ऐ हुसैन बस, ऐ नफ्से मुतमइन्ना अपने रब की तरफ पलटा, तेरा रब तुझसे राजी है, तू अपने रब से राजी है। एक मर्तबा हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, भागी हुई फौजें समटी। एक मर्तबा नेज़ो तलवार चमकने लगे, चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई। कोई तलवार मारता है, कोई तीर मारता है, कोई नेज़ा मारता है। अदीदो जिसके पास कुछ नहीं था वो झोलियों में पत्थर भर के लाया था, इमाम मजलूम के ऊपर बरसा रहा था। तारीख ने लिखा है कि एक शकी ने एक भारी पत्थर अब जो हुसैन की जानिब रवाना किया, पत्थर इमाम की पेशानी पे आके लगा। मौला से घोड़े पे सबला न गया, तीरों तबर की बारिश मुसलसल हो रही है। हुसैन चाहते हैं कि ज़मीन से जमीन की तरफ आए, दाहिनी जानिब झुकते हैं, इधर के जालिम नेज़ा चिबोते हैं। हुसैन बाईं जानिब उतरना चाहते हैं, इधर के जालिम नेज़ा चिबोते हैं। आदि एक वो लम्हा आया कि जब जुल्जनाह ने इमाम को नशेब में ले जाकर के पहुंचाया, ज़ीन से जमीन पर हुसैन आए। नहीं अदीदो, ज़ीन से जमीन पे नहीं आए, अरे इतने तीर जिस्म में लगे थे कि हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक हो गया। हुसैन का लाशा तीरों पे मुअल्लक हो गया। बस जुमला सुनिएगा, तारीख ने लिखा कि जब तक हुसैन घोड़े पे थे, जंग कर रहे थे, ज़ैनब खैमे से भाई के मंजर को देख रही थी। लेकिन जब बहन को अपना भैया नजर नहीं आया तो अब ज़ैनब से खैमे में रहा न गया, दौड़ी हुई मक्तल में पहुंची। खुदा किसी बहन को मंजर न दिखाए जो ज़ैनब की निगाहों ने देखा। अरे शिम्र सीने पे चढ़ा हुआ हुसैन के गले को काटना चाह रहा था। बहन ने ये मंजर देख लिया, ऐ पिसरे साथ मेरा माछा या सिवा हो रहा है, तू खड़ा देख रहा है। जैसे ही इमाम हुसैन के कानों में बहन की ये आवाज पहुंची, इतनी कुव्वत न थी कि जबान से कुछ कहते, आंखों से इशारा किया। मतलब ये था बहन अभी हुसैन जिंदा है, तुम खैमे से बाहर क्यों चली आई? ऐ बहन खैमे में वापस चली जाओ। लीजिए भाई का इशारा मिला, बहन खैमे की तरफ चली, मगर खैमे में दाखिल भी ना होने पाई थी। फिदाए आलम ने आवाज गूंजी, अला क़ुतिल हुसैन बिकरबला, अला बिहल हुसैन बिकरबला। फुरात का पानी ने तो उछला, सूरज को कहने लगा, ज़मीने करबला को ज़लज़ला आ गया। आदीनो जनाब ज़ैनब ने जब ये मंजर देखा, दौड़ी हुई सैयद सज्जा
खैमे में पहुंची, मेरे लाल देखो क्या कयामत बर्पा हो गई, मैं कयामत के आसार देख रही हूँ। कहा बीबी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो हटाइए। अब जो पर्दा हटा तो सैयदे सज्जाद ने देखा बाप का सर नोके नैसा के ऊपर आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। ऐ बीबी अम्मा मैं यतीम हो गया, आप बिन भाई की हो गई। लीजिए इधर हुसैन की शहादत हुई, उधर जालिमों ने हाथ में मशाल लिया, चलो ख़याम हुसैनी को लूट लो, खैमों में आग लगा दो। जब तक हुसैन जिंदा थे किसी में मजाल नहीं थी खैमे का रुख करता, लेकिन जब हुसैन की शहादत हो गई जालिम हाथों में मशाल लेके चले, खैमे के करीब पहुंचे। लीजिए दीदो खैमों में आग लगा दी, असबाब लूट लिए, बीवियों की चादरें लुटने लगी, सैयदे सज्जाद का बिस्तर भी खींच लिया गया। तारीख लिखती है कि बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे से तीसरे खैमे में, तीसरे से चौथे खैमे में, जब आखिरी खैमा बचा रहा जिसमें आबिदे बीमार सैयदे सज्जाद लेटे हुए थे बीमारी के आलम में, गश की हालत में पड़े हुए थे। ज़ैनब औलिया मकाम आई, मेरे लाल सैयदे सज्जाद जरा गश से आंखें खोलो, ये देखो खैमों में आग लग चुकी है बेटा, हम इसी में जल के मर जाएं या बाहर निकले। अदीदो सैयदे सज्जाद ने इमामत के सिलसिले में जो पहला हुक्म दिया है, कहते हैं बीबी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, आप खुद भी बाहर निकलिए, मुझे भी खैमे से लेके चलिए। लीजिए अली की बेटी अपनी पुश्त के ऊपर बारे इमामत को लेके बाहर निकली है, लेकिन हाँ दीदो तारीख ने लिखा उसी जलते हुए खैमे से, हमीद इब्ने मुस्लिम खुद इस बात की रिवायत करता है, वो रावी है, वो कहता है मैंने देखा उसी जलते हुए खैमे से एक छोटी सी बच्ची निकली जिसके दामन में आग लगी हुई थी। मैंने चाहा मैं बढ़ करके उस बच्ची के दामन की आग बुझा दूं, मैं उसके करीब गया, जैसे ही करीब पहुंचा तो एक मर्तबा वो बच्ची कहती है, ऐ जालिम तू मेरी तरफ ना आ, तुझे कुछ लूटना है तो मैं खुद तेरे हवाले किए देता हूँ। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने बच्ची से कहा मैं कुछ लूटने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। तो बच्ची कहती है हमीद इब्ने मुस्लिम अगर मेरे साथ हमदर्दी ही करना चाहते हो, मैं सैयद ज़ादी हूँ, हमारे हाथ न लगाना, हाँ बस मुझे नजफ का पता बता दे। कहा बेटी तू नजफ जाके क्या करेगी? कहा नजफ में मेरे दादा अली सो रहे हैं, मैं कहूंगी दादा अरे करबला में आओ, देखो अहले हरम पे क्या मुसीबत गुजरी हुई है। हाँ दीदो बस उसी चले हुए दामन के साथ एक मर्तबा वो बच्ची मक्तल की तरफ अपने बाबा को तलाश करने के लिए निकल गई। इधर जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने अब जो बच्चों को शुमार करना शुरू किया तो अदीदो तारीख ने लिखा है शाम गरीबा से पहले ख़याम हुसैनी में 48 बच्चे थे, लेकिन ख़याम हुसैनी में आग लगने के बाद जब शाम गरीबा आई ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने बच्चों को शुमार किया तो सिर्फ 36 बच्चे थे। 12 बच्चे सहराए करबला में कहाँ खो गए? ज़ैनब भी उन्हें तलाश नहीं कर सकी, लेकिन जब निगाहों ने देखा कि हुसैन की बेटी सकीना भी नहीं है तो कहती है बहन उम्मे कुलसूम अरे भैया की अमानत हमसे खो गई है, हुसैन हमारे सिपुर्द करके गए थे, चलो सकीना को तलाश करते हैं। लीजिए बाबेदा बस चंद फिक्रे सुनिएगा, इंशाअल्लाह हफ्ते मातम अदा हो जाएगा। लीजिए ज़ैनब उम्मे कुलसूम निकली है, सकीना को तलाश करने के लिए निकली है। तलाश करते करते लाशों के दरमियान से होती हुई इस शब की तारीकी में उस शाम गरीबा में जहां वहशत का आलम है, जहां खौफ ही खौफ है, एक मर्तबा तलाश करते करते दोनों शहजादियां फुरात के किनारे तक पहुंच गई और एक मर्तबा अब्बास अलमदार की मैयत पे जाके कहा अब्बास तुम्हारी भतीजी मुझे नहीं मिल रही है, न जाने हुसैन की ये बेटी हमसे कहां गुम हो गई है। अब्बास उठो ज़ैनब को सहारा दो, ज़ैनब कैसे तलाश करे? लेकिन हाँ दीदो अब्बास तो बाजू कटाए सो रहे थे ना। ज़ैनब और आगे बढ़ी, साहिल फुरात पे देखा कोई घुड़सवार है जो अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। कहती है भाई क्या तुमने किसी बच्ची को देखा है? वो कहता है मैंने बच्ची को तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ किसी नशेब से किसी बच्ची की रोने की आवाज जरूर आ रही है। वो रह रह के रोती है, उसकी आवाज में इतना दर्द है
किधर चली हैं? उसी नशेब की जानिब जहां से ये आवाज आ रही थी। अब जो देखा तो क्या देखा कि सकीना किसी लाशे बेसर से लिपटी हुई है। ज़ैनब ने कहा मेरी भतीजी, ऐ मेरी बच्ची सकीना, अरे ये किसका लाशा है? कहा भी अम्मा आपने नहीं पहचाना, ये मेरे बाबा हुसैन का लाशा है, ये मेरे बाबा की मैयत है। कहा तुमने कैसे पहचाना? अरे मैयत को दो तरीकों से पहचानते हैं, या जिस्म पे लिबास हो या बदन पे सर हो। अरे ये ऐसी मैयत है न जिस्म पे लिबास न बदन के ऊपर सर। सकीना ने कहा भी अम्मा, जब मैं लाशों के दरमियान बाबा को तलाश कर रही थी, ऐना अभी मेरे बाबा कहाँ हो, मेरे बाबा कहाँ हो? रात आ गई है, सकीना आपका इंतजार कर रही है, बाबा मुझे पुकार लो। बस इसी कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इसी लाशे बेसर से आवाज आई, एलैया एलैया या बनैया, आ मेरी बच्ची इधर आ, तुम्हारा बाबा इधर सो रहा है। बस मैं आवाज के सहारे पहुंच गई, यही मेरा बाबा हुसैन है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ऐ बच्ची क्या तुमने अपने बाबा को सारे मसाइब बयान कर दिए? कहा हाँ भी अम्मा मैंने कह दिया कि बाबा अब मुझे समझ में आया कि यतीमी किसे कहते हैं। वो गोशवारे जो आपने पहनाए थे बाबा, वो जालिम ने उतारे नहीं, खींच लिए थे। बाबा देखो कानों की लबें फट गई है, ये मेरे खून बह रहा है। बाबा खेमे में आग लगाई गई, बाबा सैलानियों की रज़ाएं छीन ली गई है। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा चलो मेरी बच्ची, ये रात है, यहाँ दुश्मन है, यहाँ जालिमों का हुजूम है, ये तन्हाई और वहशत है, चलो हमारे साथ चलो। मगर सकीना जाने को तैयार नहीं, मैं अपने बाबा के साथ रहूंगी। मगर ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने किसी तरीके से सकीना को बनाया और लेने के बाद आई हैं। लीजिए अरबाबे अदा, खैमे जल चुके हैं ना, अब बीबियां कहाँ रहेंगी, ये सैदानियां कहाँ रहेंगी? सरों से रज़ाएं भी छीनी जा चुकी है, सकीना को तमाचा भी लग चुका है। डरे सहमे 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे। एक मर्तबा ज़ैनब ने जले हुए ख़याम की राख के ऊपर तमाम बच्चों को बिठा दिया और बिठाने के बाद अदीदो आज अब्बास बन के ज़ैनब बच्चों की हिफाजत कर रही है। बस तसव्वुर शर्त है अरबाबे अदा। एक मर्तबा ज़ैनब की निगाहों ने क्या देखा कि एक घुड़सवार है जो तेजी से घोड़े को दौड़ाता हुआ चला रहा है। बस अदीदो जैसी ज़ैनब की निगाहों ने देखा, अली की बेटी अपनी जगह से खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद कहती है, ऐ घुड़सवार खबरदार, इधर आने की तकलीफ न करना। मेरे छोटे छोटे बच्चे, ये सहमे हुए बच्चे अभी अभी सोए हैं। देख अगर लूटने के इरादे से आ रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, दिन के उजाले में आना और लूट लेना। ज़ैनब फरियाद करती रही, मगर उस घुड़सवार ने कुछ भी नहीं सुना। वो अपने घोड़े को आगे बढ़ाता रहा। जब बहुत करीब आ गया, एक मर्तबा अली की बेटी ने लजामे फरस पे हाथ डाल के कहा, तुमसे अली की बेटी मना कर रही है, मगर तुम मानते नहीं हो। जैसे ही ज़ैनब ने अली का नाम लिया, सवार ने चेहरे से नकाब उलट दी। ऐ मेरी ज़ैनब, अरे तुमने न पहचाना, मैं तुम्हारा बाबा अली मुर्तज़ा हूँ। जैसे ही आलमे गुर्बत में ज़ैनब ने बाबा को देखा, एक मर्तबा बाबा से लिपट गई। बाबा, अरे आप उस वक्त कहाँ थे जब भैया हुसैन के गले में खंजर चल रहा था? बाबा तब कहाँ थे जब अली अकबर ज़मीने करबला पे एड़ियां रगड़ रहा था? बाबा तब कहाँ थे जब कासिम की मैयत पामान हो रही थी? बाबा तब कहाँ थे जब मेरा शीर खान अपने गले पे तीर खा के मुस्कुरा रहा था? बाबा उस वक्त कहाँ थे जब खेमों में आग लगाई जा रही थी? अली ने कहा, ऐ मेरी शहजादी ज़ैनब, तुम्हारा बाबा ये सारा मंजर देख रहा था, मगर ऐ बेटी ये इम्तिहान की मंजिल थी। मेरी बेटी सब्र करो, ऐ मेरी ज़ैनब सब्र करो, इस मेरी ज़ैनब, ऐ मेरी ज़ैनब सब्र करो, ये तुम्हारे लिए सब्र का मरहला है। लीजिए अली तसल्ली दे रहे हैं। तसल्ली देते देते एक मर्तबा कहते हैं, ऐ मेरी ज़ैनब ये बताओ मेरी पोती सकीना कहाँ है? मुझे सकीना नजर नहीं आती है। एक एक बच्चे से अली ने मुलाकात की, एक एक बच्चे को देखा, मगर सकीना पे नजर नहीं गई। ज़ैनब ने इशारा किया, वो देखो मेरी सकीना वहां आराम कर रही है, वहां सर को झुकाए बैठी हुई
होती है। अली करीब गए, कहते हैं सकीना क्या अपने दादा से नाराज हो, क्या दादा से मुलाकात नहीं करोगी? और जुमला सुनिएगा बाबे अदा। एक मर्तबा सकीना ने कहा, हाँ मेरे दादा, मैंने देख लिया एक बाप के दिल में बेटी की कैसी मोहब्बत होती है। अरे ज़ैनब ने आपको पुकारा, आप दौड़े हुए चले आए, मैं जले हुए दामन को लेके आपको बुलाती रही, मगर आप मेरी मदद को न पहुंचे। चले हुए दामन के साथ मैं आपको पुकार रही थी दादा, मगर आप उस वक्त नहीं आए। लीजिए, अली ने ज़ैनब को भी तसल्ली दी, सकीना को दिलासा दिया, ऐ मेरी बेटी सकीना, ये इम्तिहान की मंजिल है, इस मंजिल पे तुम्हें सब्र करना है बेटा। आदि दो शाम गरीबा में अली आ गए, ज़ैनब को तसल्ली दे दी, बच्चों को दिलासा दे दिया, सकीना को तसल्ली दे के अली अब शाम गरीबा से रुखसत हो गए। अदीदो अब शाम गरीबा है, तन्हाई है, गुर्बत की शाम है। कौन सी शाम? गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, बेवाओं की शाम, खाक नशीनों की शाम, छोटे छोटे बच्चों की शाम। अदीदों वो बच्चे जो सहमे और डरे हुए हैं, बस आखिरी रिवायत शाम गरीबा की मजलिस तमाम कर रहा हूँ। लीजिए अदीदों, जब अली चले गए तो एक मर्तबा ज़ैनब ने अपने हाथ में टूटा हुआ एक नेज़ा लिया। अदीदों, आपने महसूस किया टूटा हुआ नेज़ा हमेशा बांस लेकर के हिफाजत करते थे। गोया ज़ैनब बता रही है कि आज जब बांस नहीं है तो ज़ैनब बांस बन के बच्चों की हिफाजत करेगी। अदीदों, बच्चे जले हुए ख़याम की रात पे बैठे हैं, ज़ैनब बच्चों का तलाया फिर रही है कि इतने में ज़ैनब की निगाहों ने फिर देखा कोई रोशनी है जो बढ़ती हुई चली आ रही है, कोई नूर दिखाई दे रहा है, कोई चिराग रोशन किए हुए चला रहा है। फिर एक मर्तबा ज़ैनब खड़ी हो गई, अब कौन आ रहा है? ज़ैनब ने पुकारा, ऐ कोई काफिले वालों, अगर लूटने के इरादे से आते हो तो खबरदार, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, दिन के उजाले में आना लूट लेना। मगर वो नूर बढ़ता रहा, वो रोशनी बढ़ती रही, ज़ैनब फरियाद करती रही, ज़ैनब पुकारती रही, खबरदार मेरे छोटे छोटे बच्चे सो गए हैं, उनको परेशान करने की जरूरत नहीं है। मगर वो छोटा सा काफिला जो रोशनी के साथ आ रहा था शाम गरीबा में, वो ज़ैनब के बिल्कुल करीब आया तो आने वाली ने कहा, ज़ैनब हम लूटने के लिए नहीं आए हैं, मैं हुर की ज़ौजा, अरे बच्चों के लिए खाना और पानी लेके आई, मैं हुर की ज़ौजा हूँ। जैसे ही ज़ैनब ने हुर का नाम सुना, एक मर्तबा सोचने लगी, अरे वही हुर जो हमारा मेहमान बना था, जिसको ज़ैनब पानी भी नहीं पिला सकी थी, हमारे मेहमान की ज़ौजा आई है। एक मर्तबा हुर की ज़ौजा ने अरे खाना दिया, कुछ पानी पेश किया, ऐ शहजादी इन छोटे छोटे बच्चों को ये पानी पिला दो, ये खाना खिला दो, बस मजलिस तमाम हो रही है, जी भर के रो लीजिएगा बाबे अदा, पता नहीं इसके बाद कौन जिंदा रहे कौन न रहे, कौन कहाँ रहे। खाना और पानी दिया, देने के बाद दीदो ज़ैनब ने एक जाम में थोड़ा सा पानी निकाला, निकालने के बाद आई उस जगह पे जहां सकीना बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी, इसलिए कि प्यास की शिद्दत भी थी, शाम गरीबा और खौफ का आलम भी था और बाबा की याद भी तो तड़पा रही थी। सकीना बेहोशी के आलम में पड़ी हुई थी, लेकिन ज़ैनब पानी लेके जनाब सकीना के करीब आई, जुमला कहा, ऐ मेरी बेटी उठो, लो पानी पी लो। जैसे ही पानी का नाम सुना, सकीना चौंक के खड़ी हो गई, भूपी अम्मा क्या मेरे चचा पास आ गए? ऐ भूपी अम्मा, अरे ये पानी कौन लाया? क्या मेरे चचा पास आ गए हैं? कहा नहीं, अरे हुर की ज़ौजा लेके आई है। तो फिर सवाल किया, ऐ भूपी अम्मा क्या आप लोगों ने पानी पी लिया? क्या और बच्चों ने पानी पी लिया? ज़ैनब कहती है नहीं सकीना, अरे तुम सब में छोटी हो, सबसे पहले तुम पानी पियोगी, फिर उसके बाद हम पिएंगे। बस ये सुनना था। सकीना ने वो जाम लिया, अपनी जगह से उठी, मख्तल की तरफ चली, ज़ैनब ने बाजू पकड़ लिया, सकीना कहाँ जा रही हो? कहा भी अम्मा आप ही ने तो कहा ना सबसे छोटी मैं हूँ, अरे मुझसे छोटा मेरा भैया प्यासा शहीद कर दिया गया, जब तक असगर पानी
حي منقلب